ایسے حسین کہ جب دشمن کے لشکر میں پہنچے ہیں تو صدا آئی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. جس کے لیے جان کا دشمن یہ کہے کہ کتنا بہترین ہے اس جوان کو خلق کرنے والا پروردگار کون ہے؟ عزیزوں میں کیا عرض کروں، سید فرحت عباس شاہ صاحب نے ایک نظم پڑھی تھی شہزادہ علی اکبر کے لیے. میں نے جب بھی سنا اسے اور جب بھی پڑھا میرے دل پہ جا کے لگتی ہے. میں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے مومنین کے لیے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اسے. پلکوں پہ حیا رہتی تھی، پلکوں پہ آیا رہتی عجب حسن ادا سے. جی علی اکبر. پلکوں پہ حیا رہتی عجب حسن ادا سے، اکبر کی طرف دیکھ نہ پاتی تھی حیا سے. یکجا ہوا یوں حسن بھی چہرے پہ سمٹ کر، ہر دیکھنے والا اسے تکتا تھا پلٹ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یکجا ہوا حسن بھی، یکجا ہوا یوں حسن بھی چہرے پہ سمٹ کر، ہر دیکھنے والا اسے تکتا تھا پلٹ کر. رخساروں پہ پڑتا تھا کسی نور کا حالہ، پیشانی پہ شرمائے تھا سورج کا اجالا. قدموں میں بچھا کرتی تھی پریوں کی نگاہیں، نالین کے بوسے کو ترس جاتی تھی راہیں. چلتے تھے تو لگتا تھا دعا ساتھ چلی ہے، اور زین پہ بیٹھے نظر آتے تھے علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو آج تو ابھی سے کلیجہ چاک ہو رہا ہے، آگے کیا پڑھوں اکبر کے کلیجے کے بارے میں. ہائے علی اکبر، ہائے علی. رخساروں پہ پڑتا تھا کسی نور کا حالہ، پیشانی پہ شرمائے تھا سورج کا اجالا. قدموں میں بچھا کرتی تھی پریوں کی نگاہیں، نالین کے بوسے کو ترس جاتی تھی راہیں. چلتے تھے تو لگتا تھا دعا ساتھ چلی ہے، اور زین پہ بیٹھے نظر آتے تھے علی ہے. سینہ تھا کہ مردانہ وجاہت کا نمونہ، سینہ تھا کہ مردانہ وجاہت کا نمونہ. بازو تھے کہ عباس کی طاقت کا نمونہ، تھی چاند کے جوبن پہ بنی اس کی جوانی. ایسے تو نہ کہتے تھے محمد کی نشانی. کوفہ و شام کے بازاروں میں عورتیں اکبر کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھ کر کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. اور جب ام لیلا تڑپ کر پوچھتی تھی اس کی ماں کے لیے ایسا کیوں کہتی، اس کی ماں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، کہتی تھی نہ نہ، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. ماں نے نوکے نیزہ پر اکبر کے سر کو کیسے دیکھا ہوگا. کل بی بی زینب کے بچوں کا ماتم ہوا ہے نا، کل ہم نے اون و محمد کے مصائب آپ کے سامنے عرض کیے ہیں نا، لیکن یقین کرو آج زینب زیادہ غمگین ہے. زینب کے علی اکبر کا ماتم ہے. امام زمانہ نے مولا کے زیارت نامے میں یہ بات موجود ہے کہ اے کربلا میں نسل ابراہیم کے پہلے شہید آپ پر سلام ہو. مولا زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں اللہ ہر اس شخص کو ذلیل کرے جس نے اے علی اکبر آپ کے قتل میں حصہ لیا ہے. یا اللہ اتنی تڑپ ہے، یعنی گویا دل جل گیا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اتنا دکھ ہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا. میں کہتا ہوں حسین پر کیا گزری، شہادت تو چھوڑیے، فقط کوئی رخصت اکبر کو پڑھ لینا اور محسوس کر لے صحیح طرح زندگی بھر روتا رہے گا. آئے حسین ابن علی کے پاس اکبر جیسا جوان بیٹا، استاذن اباہ فاذن لہ. حسین جب بھی کوئی دوسرا آتا تھا نا اسے پسو پیش سے کام لیتے تھے کہ نہ مقتل میں نہیں بھیجتے تھے، لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی نا جیسے ہی اجازت طلب کی فاذن اباہ، حسین نے اجازت تو دے دی فوراً، لیکن اپنی داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے
नबी के मुशाबे था। जब मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता था, अपने अली अकबर को देख लेता था। हाय कयामत बर्पा हो गई खेमों में। अली अकबर बहनों से विदा होने के लिए तशरीफ लाए, माँ को आखिरी सलाम किया, अभी निकलना चाहते थे। हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल, पहले उस बीबी से, उस भूपी से इजाजत लेकर आ जिसने 18 बरस तक तुझे पाला था मेरे लाल। जिसने 18 बरस तक तुझे पाला है, उस पुपी से इजाजत लेकर अली अकबर आए, अदब एहतराम के साथ बैठ गए। कहा पुपी अम्मा आपसे कलाम करना चाहता हूँ, ये बतलाइएगा आपका मकाम ज्यादा बुलंद है या दादी फातिमा ज़हरा का मकाम ज्यादा बुलंद है। एक मर्तबा बीवी ने अपनी माँ का नाम सुना, एहतराम में खड़ी हो गई। कहा अकबर ये कैसा सवाल है, ज़ैनब का कोई मकाम हो लेकिन फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। कहा फिर पुपी अम्मा आज एक बात अर्ज करता हूँ, आज अपने लाल को फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दो पुपी अम्मा। बीबी ज़ैनब ने तड़प कर कहा कि ऐ मेरे लाल अकबर, तूने किस अंदाज से इजाजत तलब की है, जा हमने तुम्हें नाना के दीन पर फिदिया किया। लेकिन अकबर ऐसे निकले कि जैसे किताबों में लिखा है भरे घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। इतना गिरिया था, कई मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, बार बार गिरा, कोई दामन थाम रहा था। मुझे नहीं मालूम कौन सी बीबी थी, लेकिन कोई बुजुर्ग बीबी होती तो शाने से रोकती अकबर को। ये 4 साल की बच्ची थी जो अकबर के दामन को पकड़ कर कह रही थी भैया सकीना को छोड़ कर ला जाओ भैया। अभी अकबर निकलना चाहते थे कि एक और आवाज आई, भैया सबसे मिल लिए लेकिन हमसे मिलकर ना जाओगे। देखा बिस्तर पर मेरे बीमार इमाम की सदा आ रही है, सैयद सज्जाद। अकबर आए, भाई से भी विदा होकर चले। अब जो सवारी पर सवार हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगा जैसे कोई आहट महसूस हुई हो। देखा हुसैन पीछे पीछे। अजीजों, ये बूढ़े बाप का जवान बेटे के पीछे चलना करबला में और कुछ ना हो, फकत ये जिंदगी भर सर पीटने के लिए काफी है अजीजों। कब बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। या अल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने बेटे अता किए जवान हो चुके हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। हुसैन ने कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा नहीं है ना जवान बेटा। अकबर तुझे क्या खबर मैं क्या कुर्बान कर रहा हूँ। हुसैन के सबसे बड़े नुकसान का नाम है अली अकबर। रावी कहता है मैंने हुसैन को अकबर की शहादत से पहले भी देखा था और बाद में भी देखा था, लेकिन मैं हुसैन को पहचान न सका। अकबर से पहले हुसैन के सर के बाल, सारी दाढ़ी के बाल सियाह थे, लेकिन बूढ़े बाप ने जवान का लाशा उठाया, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हुसैन के। क्या बेटा अगर हो सके तो मुड़ मुड़ कर दिखलाते रहना अपना चेहरा, बस मैं अपने नाना की ज़ियारत करता रहूं। जाओ बेटा। अब अकबर पहुंचे हैं, रजस पढ़ा अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु व बैतुल्लाह औला बिन नबी, खाने खुदा की कसम हमसे कोई ज्यादा नजदीक नहीं है नबी मुस्तफ़ा के। ऐ शबस और ऐ शिमरे पज़ात, मैं शमशीर से ऐसा हमला करूंगा कि शमशीर की ताब खत्म हो जाएगी। ज़र्ब गुलाम हाशिमी अलवी, ये ज़र्ब हैदरी और ज़र्ब हाशिमी होगी। वला अज़ालुल यौम अहमा अबी, आखिरी सांस तक मैं अपने बाबा की नुसरत
करता रहूंगा। अल्लाह ला यहकुमु फीना नद्दाई, खुदा की कसम तुम ज़िनाज़ादों को मैं अपने अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अकबर ने, हुसैन के शेर ने पहला हमला किया, अली अकबर का पहला हमला है ये। अरे शुजाअत हैदरी नजर आ रही है, जैसे खैबर में हैदर ने हमला किया था। या हुसैन, 200 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया, वापस पलटे। देखो, अगर बाप देख रहा हो ना और जवान बेटा को बहुत बड़ा कारनामा दिखला कर आए तो बेटा कुछ कहता है ना, कुछ तो मांग लेता है ना। क्या बाबा आपने मेरी जंग देखी? क्या बेटा ऐसा लगा जैसे हैदर करार लड़ रहे हो। कहते हैं बाबा लाता शौकत कतल नहीं, अब थोड़ा सा पानी मिल बाबा प्यार से कत्ल कर दिया है, वसीकुल हदीद कद अजहदनी, गिरानी आहन ने बोझ बढ़ा दिया है बाबा। अब हुसैन आगे बढ़े, जवान बेटा पानी मांग रहा है, खुदा किसी बूढ़े बाप पर वक्त ना लाए कि वो पानी न दे। देखो हुसैन कौसर के मालिक है बिला शक, लेकिन ये इम्तिहान की मंजिल है। हुसैन आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा कर, मेरी जबान तू अपने मुंह में ले ले, शायद तुझे कुछ तसल्ली हो जाए। बस जैसे ही हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दी, अकबर पीछे हटे एकदम। का बाबा आपकी जबान मुझसे भी ज्यादा खुश्क है बाबा, मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो बाबा। क्यों ना होते हुसैन हर शहीद का लाशा उठा के लाते थे। या हुसैन, ये क्यों अली अकबर की जबान, हुसैन ने अपनी जबान क्यों दी थी अली अकबर को? असल मसलहत हुसैन जाने, लेकिन उलमा कहते हैं शायद वजह ये रही हो। वैसे मायूब है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के लबों को चूमे, लेकिन हुसैन इसी बहाने चाहते थे मैं आखिरी बार अपने अली अकबर के लबों को चूम लूं। मैं अकबर के लबों से अपने नाना रसूल अल्लाह का बोसा ले लूं। नाना मेरे लबों को चूमा करते थे, मैं अकबर के लबों को चूम रहा हूं। अकबर ने कहा बाबा खुदा हाफिज मैं जा रहा हूं। कहा जाओ नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे, अब पलट कर नहाना है मेरे लाल जाओ। हसीन अपने नमीर मलऊन ने दूर से अकबर के सीने का निशाना लिया। मैं पढ़ता जा रहा हूं अजीजों, बस आज जो अकबर पे ना रो सका वो अपनी किस्मत पर रोए, वो कब रोएगा फिर जो हुसैन के अली अकबर का मातम न कर सके। अकबर ने हमला किया, चारों तरफ से लश्कर ने घेर कर मारा, लेकिन हसीन अपने नमीर ने दूर से सीने का निशाना लिया। पर्ची लगी, दस्ता खींचा उसने, दस्ता हाथ में आया, टूटा हुआ फल कलेजे में रह गया। अकबर जमीन करबला पर गिरे। अकबर जमीन करबला पर गिरे। अकबर जमीन करबला पर गिरे। हुसैन चलते हैं अकबर पर। अकबर कहते हैं अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। हर शहीद जब गिरता था कहता था मौला मेरी मदद को आइएगा, मौला अदरिक नहीं। अकबर ये नहीं कहते कि बाबा मेरी मदद को आओ, क्योंकि बेटा है ना, बूढ़े बाप का एहसास है ना, बनी हाशिम का जवान है। कहते बाबा मुझे पता है तुम सुबह से लाशें उठा उठा के आप बहुत थक गए बाबा, नहीं जहमत नहीं करना अकबर के लाशें पर आने की बाबा, बस मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। लेकिन वो हुसैन जो जॉन गुलाम हबशी के लाशे पर भी गए हो, अपने जवान अली अकबर के लाशे पर क्यों कर न जाएंगे हुसैन? लेकिन चला नहीं जाता, आंखों का नूर नजर नहीं आ रहा कुछ। हुसैन कहते उदउनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे। 72 मरतबा हुसैन गिरे और उठे। अनीस ने कहा है दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है, दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है, फर्जंदे फातिमा को पिसर की तलाश है।
फर्जंद फातिमा को पिसर की तलाश है। हुसैन करीब पहुंचे, देखा जवान बेटा है, एड़ियां रगड़ रहा है। हाय 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 हाय। सलाम हुसैन पर, वो काम जो जॉन के साथ किया वो अपने अली अकबर के साथ किया। हुसैन आहिस्ते आहिस्ते झुके, फवज़अ खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना चेहरा अकबर के चेहरे पर रखा। काला दुनिया बअदकल अफा, बेटा तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पर खाक है। लक़द इस्तरहत मिन हम्मि दुनिया व बक़िया अबूका वहीदन फरीदन गरीबा, तू खुद दुनिया के गमों से आजाद हो गया, बाप को तन्हा और गरीब छोड़ गया। कहते हुसैन, ऐ मेरे लाल तुझे कैसे खेमों में लेकर चलूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू जवान है बेटा, इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दे, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल ताकि तेरे हाथों के सहारे तुझे घसीट घसीट कर ले चलो। अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में दिया, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। अजीजों, याद है ना सीने पर क्या हुआ था? हुसैन ने कहा बेटा दूसरा हाथ मेरी गर्दन में डाल दे। कहा बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। बाबा सदमा देना नहीं चाहता। का बेटा तू हाथ हटा, मैं साबिर हुसैन हूँ। अब जो हाथ हटा, या अल्लाह, बरछी का टूटा हुआ फल कलेजे के अंदर नजर आया। या हुसैन, या हुसैन। हुसैन ने अली अकबर को जमीन पर लिटाया। अजीज आवाज दी नजफ की तरफ रुक करके, या अली, ऐ कायनात के मुश्किल कुशा मेरे बाबा, खैबर पता करना आसान है बाबा, जवान के कलेजे से बर्छी खींचना मुश्किल है। हुसैन बर्छी खींचते हैं लेकिन क्या करे, कलेजा साथ निकल रहा है, जवान बेटा तड़प रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौलाना अजहर संजैदी साहब ने इस मौके पर एक शेर पढ़ा था, मैंने सुना था, इतना गिरिया हुआ था आगे कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते हुसैन गोया अकबर से साबिर हुसैन है ना, हुसैन साबिर है, लेकिन हुसैन का एक मर्तबा सब्र मैं पढ़ूं। कहते हैं बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। करीब था कि हुसैन मर जाते, दरे खैमा से बीबी ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे, मैं आती हूँ मिल के लाश उठाते हैं। भैया मैंने अकबर को पाला है, लाशा है बराबर का भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। भैया मैंने अकबर को बचपन से गोद में उठाया है, भैया मैं लाशे को गोद में उठा लूंगी। हुसैन ने अकबर का लाशा रख दिया। क्या बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर ना आना, मैंने तेरे पर्दे पर अपने अकबर को कुर्बान किया। बगैर हिजाब के घर से बाहर ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। कहाँ है रोने वाले? अरे नहीं मालूम अगले बरस जिंदा रहोगे या नहीं, अकबर का मातम फिर होगा या नहीं। या हुसैन कह के सीना पीटा। हुसैन अकबर की लाश को लेकर चले, बनी हाशिम के कुछ बच्चे खयाम से बाहर निकले। हुसैन या अली कहकर जा रहे थे। उलमा कहते नहीं मालूम, अब भी अपने बाबा अली को पुकार रहे थे, या अपने बेटे अली अकबर से कह रहे थे, ऐ बेटा अली अकबर, ऐ बेटा अली अकबर। गरीब ज़हरा पर क्या वक्त है गरीबी का, गिरेबान चाक है बालों में खाके करबो बला। कहते हैं ऐ उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूं मैं लाश।
आज ताबूत की ज़ियारत होगी, सब मिलकर पढ़ना। कहती थी ये माँ खूब हरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। हुसैन कहते नौजवान लाश ज़ईफी है, मेरी नजरों से देख मंजर को, कैसे हमशीर को संभालूंगा मैं, संभाले हुए हूँ अकबर को, तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। उसके सीने से लेना में हली, मैंने पर्ची अभी निकाली है, इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस वक्त या अली कहकर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। दो नगीने थे उसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका, सब्र ऐसा कि अपने बेटों पर मैं रोते उसे नहीं देखा है, मगर अब ये लाश है अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। तुम हिचकियां ले लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुंह से हमेशा के लिए बोल रहे हो, क्यों रूठे हो दिल में, हाय हाय अली अकबर। आए जो हमें लूटने खेमे में सितमगर, आखिरी मिसरा मेरी रूह निकल रही अजीजों, आए जो हमें लूटने खेमे में सितमगर, ना देगी सदाए अली अकबर, अली अकबर छिन जाएगी चादर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब हरी मैयत से लिपट